unemployed, and therefore I play golf quite often. And as a young professional, I thought that Usman should be working very hard because he's rapidly growing. But every day when I was playing golf and had lunch break, I found Usman sitting at Palmer's downstairs and having lunch with the most happening people. And also chameleon is very appropriate because he keeps changing color. So being chameleon, welcome to chameleon. And it's good that you could demonstrate. So remarkable human being. And I have still no idea that how he managed to climb the corporate ladder that fast, because they don't appreciate the educated, they don't appreciate the crazy, they don't appreciate the fighters, they don't appreciate people who are like very ordinary people and who are not pompous, but somehow, for some reason, he has been crazy enough to find traction and grow tremendously in the organization. Please a round of applause. It was interesting that Usman, I remembered that Usman and I, we were in the same classroom at some stage. Adnan I didn't remember, but Adnan reminded me. Then RM said that he's from National College of Arts, but crazy as it sounds, back in 1977, I was teaching at National College of Arts with some of very senior professors. But now, back to business. Remarkable woman. Many years ago, she left education and wanted to do something very special. At 18 years of age, her family, also a remarkable family, who allowed her to go and work, to set up her own business, to learn, to go abroad, and of course get married very early as well. And she has also been appreciated tremendously out in the world, especially in Italy so much, we understand. She has done a lot of philanthropic work. Many people who lost their faces got their faces back because this remarkable human being was there. Please put your hand together for Ms. Spark. So much to tell you. अब मुझे ये सोचना पड़ेगा क्रेजियस्ट चीज़ें जो ज़िंदगी में मेरी आई थी वो क्या है। जैसे आपको भी बताया कि मैंने बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर दिया था। I was lucky and blessed that I had a family जहाँ पे मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों जो थे वो उन्होंने कभी लड़के और लड़कियों में तफरीक नहीं की। बिग फैमिली, 6 बहनें और फिर 2 भाई। सो अंदाज़ा हो गया ना कि बेटे की ख्वाहिश में 6 बच्चियाँ पैदा हुई थी। तो मैं वॉज द एल्डेस्ट, सो मैं कोई क्रेजी चीज़ कर नहीं सकती थी क्योंकि हर कोई माई सिस्टर्स विल लुक अप टू मी। जो मेरी बहन भाई थे वो मुझे बाजी 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 करते थे। आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। एंड जिस तरह जितने भी साहिबान आए उन्होंने बताया कि या वो इंजीनियर बनना चाहते थे या बनाना चाहते थे उनके घर वाले और डॉक्टर्स। उस ज़माने में ख़वातीन या बच्चियों को भी बहुत कम चॉइसेस होती थी, टीचर बन जाइए या डॉक्टर बन जाइए। सो मुझे भी डॉक्टर बनने का मुझे वाकई शौक था। So, but because I got married very young, being the eldest in the family, the only question that I asked my father was कि डैडी मैं पढ़ सकूँगी आगे? हाँ, उन्होंने वादा किया वो आपको पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं। I came back home with my son who was only a few months old, and then my father and my parents actually gave me a choice कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो काम करना है, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पालना चाहती हूँ।
And I still remember there was a smirk on my father's face and he says, दिल में उन्होंने सोचा होगा कि वो पंजाबी में क्या कहते हैं, मुँह ना मथा जेल ये तो पहाड़ में So and I was I said नहीं, मैंने काम करना है क्योंकि मेरा बेटा खुरम जो है मैं उसको पढ़ाना अपने मैं खुद उसको एक ज़िंदगी देना चाहती हूँ. And this is way back in 1980 that I went abroad. और मुझे मेरी जो पहला लेटर which I received from after writing to many different schools and colleges स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि मैंने भी सेकेंड ईयर ही कंप्लीट किया और आई वाज इन सेंट जोसेफ कॉलेज एंड सो आई वेंट अब्रॉड. The first letter which came back as an answer was from a beauty college. मेरे डैडी को कुछ नहीं पता था, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड बालों की नाई के पास जाते होंगे. अम्मा मेरी हम सबको बहुत ज़्यादा वेरी ब्यूटीफुल तरबियत एज वी कॉल इट. सो व्हेन आई केम बैक आई वाज इन फॉर अनदर सरप्राइज. मेरे डैडी ने मेरे लिए एक बार्बर शॉप तैयार करके रखी, ऊंची शेल्व्स और ऊंची कुर्सियाँ बड़ी बड़ी. एंड आई सेड टू डैडी, डैडी औरतों के लिए नहीं है. जी मैं तो इसी में जाता हूँ. मैं कहा चलो आई टेक इट. एंड जब वो मैंने काम शुरू किया तो खुरम मेरा बहुत छोटा था. मेरा उस वक्त फोकल पॉइंट मेरा बेटा था. हर चीज़ उसके लिए करना, उसकी ख्वाहिशात छोटी छोटी, चाहे वो टॉयज़ हों या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बेमायने होती थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखती थी. एंड मैं स्कूल छोड़ती थी उस वक्त अपने बेटे को, और उसके बाद मेरे जो सैलून था वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था तारिक रोड में. आई स्टार्टेड फ्रॉम कराची एंड दिस लेडी जो मुझे जब नज़र आई तो मैंने कहा मुझे अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए. सो मैंने उनके अपार्टमेंट को नॉक किया और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मसरत मिसबा हूँ. दरवाज़ा बंद टप करके. मैंने कहा शायद धोखे से बंद हो गया. मैंने दोबारा जब बेल किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के कहा, अब आप जैसी ख़राब औरतें हमारे मोहल्ले के आपको को ख़राब करेंगी, गंदी हैं आप. और जो भी उनके उस वक्त आया, एंड आई वाज लाइक शॉक, टेकन अबैक, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. उनको क्या पता मैं कौन हूँ या मेरे वालिद क्या करते थे या क्या करते. उस वक्त मुझे बस ये लगा कि इज़ दिस द स्टार्ट ऑफ माई प्रैक्टिकल लाइफ. And yes, it is how that practical life started, because for 3 years I would come up the stairs, she would go down to her office because she was a lawyer, and I would say Assalamu alaikum and she would go मतलब वो मुझे acknowledge ही नहीं करती. एक चीज़ which I learned from my parents was always to say शुक्राना to Allah Taala. जब मैं घर आई तभी भी शुक्राना, जब मैं अपने बेटे को प्यार करती थी तभी भी शुक्राना, जब मैं खातून ने मुझे गंदी औरत कहा तभी भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया. After 3 years, she walked in to my office and she had her daughter with her. And she says, आप इसको अपनी जगह बनाइए. And you know, it's like, आप आए बैठे, फिर मेरे सर्टिफिकेट्स देख के कहती है कि आप काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हैं. उस वक्त तक मैंने अपना इंटर के बाद अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो था वो साथ देने का भी रिवाज था. सो उस दिन भी मैंने शुक्राना अदा किया क्योंकि मे बी एट दैट टाइम मेरे ज़िंदगी का वो एक गोल था कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ साहिबा को कि मैं बुरी नहीं हूँ. मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ. और उसके बाद से लेके अब तक इट्स बीन 35-36 ईयर्स. डेप्लेक्स बहुत आगे निकल गया. 42 फ्रेंचाइजेज ऑल ओवर पाकिस्तान. लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अल्लाह ताला ने आसानियाँ दी थी क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे पीछे थे, उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया. लेकिन इस फील्ड को जिसको लोग बुरा समझते थे, ब्यूटिशियन
अभी भी लोग मुझे समझते हैं ना कोई बहुत गरीब सी ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हूँ. सो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ब्रॉट अप माई चाइल्ड, माई सन, इतने प्यारे तरीके से. आई एम सो प्राउड of him also and my daughter also, because I later on got married again. He teaches at Karachi University. He was initially वो Bristol Clifton College, which was a private school, वहाँ पे भी पढ़ा. और आने के बाद उसने मुझे ये कहा कि इंडस वैली में पढ़ाता था. एक दिन मुझे कहते हैं कि अम्मा मैं कराची यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ. इनका पैसे बहुत कम मिलेंगे. मैंने गोस कोई बात नहीं. ऐसा वाह, बट व्हाई डू यू वांट टू लीव? ही गोस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने टीचर्स का काम पेश करते हैं मुझे कि मैं उनको मार्क करूँ. इफ़ आई मार्क देम लेस बिकॉज द अदर स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा अच्छा काम और मेहनत से करते हैं, तो मैं बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स. एंड इफ़ आई डोंट मार्क देम वेल, तो आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि मेहनत करते हैं. सो ही वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, हैप्पी. He's got married, I've got a son, a grandson. और वक्त के साथ साथ there were a number of other difficulties which I faced, being a woman, being a single mother. मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझसे कोई ऑफिशियल काम होते थे, शुरू में तो my father would always be there, and then I started learning, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही नहीं हूँ, इतने सारे गरीब फैमिली. तो उसके बाद जी मैंने टीच करना शुरू कर दिया. उन्होंने लाइन ऑफ मेन एंड maybe 2-3 women sitting there and said कि जी आप टेस्ट पे नहीं कर रही हैं. और मैंने कहा जी मैं इतना तो करती हूँ, मुझे ये बता दिया मैं कहाँ पे गलत हूँ. एंड आई लर्न. तो दिस जेंटलमैन गॉट अप एंड सेड कि आपको हम आपके घुटनों में खुआएंगे तब आपका दिमाग ठीक होगा. अच्छा, मैं कभी गुस्सा नहीं होती, मुझे कभी ऐसी चीज़ों तो कोई मायने नहीं रखता. ये क्या आप और जनाब मुझे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटा सा हूँ, मुझे नहीं कुछ उन बातों का अंदाज़ा. सही से मैं समझी नहीं आपका मतलब. कहते हैं आप जो है ना वो चलाक है, आप पार्लर चलाती हैं, पार्लर चलाने वाली औरतें. एंड दिस इज़ लाइक 1980 and then maybe 1991. मैं हैरान रही कि सोच जो है वो बदल नहीं सकी. और ना ही मुझे कभी ख्याल आया कि मतलब मेरा जॉब है, जो मेरा जिससे मैं अपना रोज़ी रिज़्क़ कमा रही हूँ, वो इतना बुरा है लोगों की नज़र में. बट देन मैंने उनको चैलेंज किया कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. वी वन, गॉट एन अमेजिंग जजमेंट फॉर अस फॉर द ब्यूटी सैलून ओनर्स एंड ऑल. और उसके बाद से लेके अब तक दिस नो लुकिंग बैक. एक्चुअली हर चीज़ जो थी वो इसलिए आसान थी कि आई वुड टेक ईच बैड एक्सपीरियंस or difficult times in my life as preparation for the next set of experiences. In 2003 I thought this is now time for me to give back to my society, to give back to Pakistan, when I started working for burn victims. Or these are the girls who have gone through much more difficult times than myself. जिन चीज़ों को मैं अल्लाह ताला से शिकायत करती थी वो कोई मायने ही नहीं रखते. They've lost their faces, they're badly disfigured, mutilated, and yet उनको जब वो confidence मिला, I trained them. They're women. We have, like I told you, that we've got 52 branches all over Pakistan. On an average 35 लड़कियाँ एक branch में काम करती हैं. So there's a lot of empowerment, a lot of strength which is being given to a woman because she is economically मजबूत है. And so am I. क्योंकि अगर मैं आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ, अच्छा कमाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ.
और ना ही मुझे कोई क्वेश्चन कर सकता है। मतलब मुझे ये पता है कि ऐसी बच्चियाँ जिनको मेरी मदद की ज़रूरत थी, मे बी it was time for me to give back to them, which I did, and alhamdulillah, many girls have become beauticians, although they're not beautiful, but they're beautiful from inside. I love them when they come to Depilex, do their makeup, and look at me and say, "Okay, मैं अच्छी लग रही हूँ?" These are the girls who have lost everything on their faces. So, if I look back, there were so many crazy things that we did, but the craziest must have been my work for these burn victims, giving them smile back, giving them life. Life का मतलब ये कि confident life, economically बेहतर बच्चियाँ, खुश मेरे साथ होती हैं, बहुत सी अभी चल रही हैं, किसी के ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती अगर आप तहिया कर लें और उस तहिए के साथ आपकी नीयत मजबूत होनी चाहिए, आपका एतक़ाद मजबूत होना चाहिए। आई बिलीव दैट गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। आप मांगे आपको मिलेगा।